skeleton. This is your body skeleton, everyone knows. You have seen in so many books and on charts. Okay. Now, how to apply this electrotherapy? This is called dermatomes. We will start from dermatomes. Do you heard the word dermatome? Have you heard this word dermatome? What is derma? Derma means skin, and dermatomes, the spectrum of your skin. So, how I apply electrotherapy on this skin? Huh? This is derma means skin, and dermatomes means spectrum of your skin. And how we apply this electrotherapy on this skin point? So, we will go one by one. Right from beginning, this you can see two anterior and posterior view, from front side and back side. There are two figures, front and back. Then next we will see how we will apply this. So, in next figure we will go next figure. This is application of points for electrotherapy on your body. Can you see second figure? Electrotherapy is electrical current passing on your body with two metal rods, and voltage is regulated by two regulators. And this is not a shock, this is only current passing in body. But this is going through and through your skeletal system, mean up to bones and nervous system. What is last system? Bones and nervous system attached to it. The both systems can cover. See, in this first, on sleeping position we can give on backbone from neck to coccyx. This is first, from neck to coccyx here. This is sleeping position. From back side we start electrotherapy. Have you seen this point? From neck to coccyx, one rod on neck and one on to coccyx. So, whole your spine will be covered in this area. So, this is the first different point. Then second point you can see. Have you seen second point? Shoulders, back, both sides. This 2 points. This is on neck and this is on spine, middle of the spine. And then third point, you can see third point, shoulders back from both sides, on both sides. This is third point. So, this first, second, third, there are only covering spine from neck to coccyx. Current is according to your body stimulation, how your body is responding. From 0 to 120 voltage we can pass current. Current is passing through both these rods, these both rods, metal rods. Through this metal rod, this wet napkin, in napkin you have to put in water and completely wet, and on the neck to coccyx you have to cover this area with napkin, and then keeping rod you have to slowly pass the current according to requirement of your body, according to your pain. Pedal points भी है ना आगे, point fix है. For each and every symptom, each and every disease and dysfunction, points are same. एक्यूपंक्चर में रहते वो अलग है, वो ये स्पेक्ट्रम वाइज है. एक्यूपंक्चर में हाथ पे और पाँव में ज़्यादा रहते हैं, सर पे, हाथ में, पाँव में ज़्यादा रहते हैं एक्यूपंक्चर में. This is total body from head to toe. This is totally covering your body. Only on hair it can't be given. That's why I have brought this chart. Now see again fourth point on this figure, fourth point. This is coming down on thoracic cavity. ये पहला neck to coccyx था, ये neck and spine था, अभी on thorax fourth. Then fifth from lumbar region and lastly hips. में अलग different points है. These are all different points. This is not only one point, but on spine you will get several points for each and every organ. That's why I am explaining both ways. Yeah, directly on local spot also we can give this. Where there is pain, we can apply there. Only on thumb also. This thumb is this much. Only on thumb also we can apply this point. It works very fast. In acute condition, only one sitting was also. Current is getting passed. Yeah. So developing is by current. Developing, no. What your pain or inflammation is there, that will be relieved by passing this current. By current, healing is done. Yeah. By current. By current, this electrotherapy points given.
From 0 to 120 we have to adjust according to requirement of the patient. How much pain is there, that much voltage is required. Voltage. Milliampere. 0.05 milliampere. Voltage is 0 to 120 and current is 0.05 milliampere. This is fixed. इससे ज़्यादा नहीं दे सकते. 120 के ऊपर बॉडी का कैपेसिटी नहीं है ह्यूमन बीइंग का. 120 के ऊपर कट शॉट हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा. इसमें सेफ्टी वोल्टेज. शॉक नहीं लगेगा, बॉडी ज़्यादा से खींचेगी तो मसल को प्रॉब्लम हो सकता है. टू मच स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और योर बॉडी, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इफ यू आर डूइंग योगा and yoga is doing incorrect way, wrong posture, then you will get more problems to your health instead of helping your body. So more than requirement, if you pass the current to your body, that is harmful to your body. This is very risky. You have to take very care. Either without knowledge or without having experience, you can't apply this. So this paralysis and Wow, paralysis you can take more than 120 also, because there is a loss of power. For paralysis it is too much helpful. Now, yeah, 100%. Since 40-50 years we are working on this therapy. My father has invented it. It was electric model. I have developed in electronic model. This is electronic model now, whatever I have got. Paralysis, immediately if you come to me in first stage, first week or first day, it is possible to get recovered. My husband has got paralysis right now last month. Within 10 sittings, they are totally recovered. He again joined his duty. बहुत टाइम हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 महीना, लेकिन इमीडिएटली आएगा ना तो 1-2 सिटिंग 10 सिटिंग भी काफ़ी है. पैरालिसिस इज नॉट अनरिकवरेबल और नॉट क्यूरेबल डिसीज नहीं है. पैरालिसिस क्या है, लॉस ऑफ पावर होता है, ब्रेन क्लॉट होता है, कुछ तो हेमरेज होता है. हाँ, बॉडी में एक्टिवेशन लाता है. जो पार्ट डेड है, जो पार्ट इन्फ्लेम है या पेनफुल है, उसमें एक्टिवेशन स्टार्ट करके केमिकल रिएक्शन हो जाती है. ऑक्सीजन और ये H2O मीन्स पानी होता है. एनी ऑर्गन डेड नहीं, जो डेडली नॉट वर्किंग टोटली, हाफ वे वर्किंग, इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन. डेड रहेगा तो नहीं होगा. डेड मीन्स टोटली गॉन फ्रॉम योर बॉडी. नहीं, इतना साल नहीं है वो, कितना साल जिंदा करेंगे उसको. एक बार आपका सोल निकल जाता है बॉडी से तो कुछ नहीं हो सकता. मीन्स वो कार्डियक मसाज वगैरह देते हैं, शॉक वगैरह, इलेक्ट्रिक शॉक हार्ट को देते हैं. समझो हार्ट बंद हो गया तो हार्ट का देकर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा बॉडी ही डेड हो गई. हाँ, इलेक्ट्रोथेरेपी है, वो जो शॉक देते हैं वो एकदम विगरस होता है, 400 वोल्टेज. ये तो 120 वोल्ट है. ये जो आप समुंदर देखते हैं उसमें लास्ट वेव कैसे आते हैं, पूरा एकदम फ्लो आता है. उसमें लास्ट वेव देखिए आपने, कितना माइल्ड फ्लो होता है वेव का, उतना ही माइल्ड फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी तो आपको समुद्र में बैठ के भी मिल जाएगी ना, पाँव में या हाथों में, जहाँ आप खड़े रहेंगे. पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, ज़मीन पे भी इलेक्ट्रिसिटी है. और ये जो सोलर वेव्स होते हैं वो धूप से ये करंट बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी. तो इट इज़ सोलर वेव्स आर पासिंग इनटू इलेक्ट्रिक वेव्स. दिस इज सोलर हीट ओनली, बट इट हैज़ फॉर्म इन इलेक्ट्रिक वेव्स. इलेक्ट्रिक कैसा फॉर्म हो जाएगा? ये जो ट्यूब व्यूब सब लाइट लगते हैं, किसका इफेक्ट है? ये सोलर हीट का इफेक्ट है ना. कहाँ कंज्यूम किया है? बारिश भी कैसे होती है? तो ये एक मैकेनिज्म है ना, बारिश आना जाना. वैसे ये इलेक्ट्रिक वेव्स फॉर्म करना थ्रू सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर हीट से ही होता है. लेकिन जो सोलर हीट में आप बैठेंगे धूप में, तो कड़क धूप में क्या हो जाएगा? बॉडी जल जाएगी. इसमें ये इतना माइल्ड करंट है, इसमें बॉडी जलती नहीं है, एक्टिव हो जाए. तो सन बाथ प्रकार आपने देखा है ना, सन बाथ, तो फॉरेन में ये सिस्टम बंद कर दिए. क्यों कर दिए? स्किन का डिसीज, कैंसर होने लगा वहाँ सन बाथ लेने से. ये डायरेक्ट हीट होती है, डायरेक्ट यूर रप्चर करती है स्किन. तो इसमें हम गीला नैपकिन रखते हैं, मीडियम रखते हैं बीच में. और पानी क्यों यूज़ करते हैं, गीला नैपकिन क्यों यूज़ करते हैं मालूम है? वाई देयर इज़ वाटर. वाटर क्या है, क्या कंडक्टिविटी है और कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लकड़े से होता है क्या करंट पास होता है? लकड़े से. वुड में करंट पास होता है, हो सकता है क्या? मेटल में होता है, मेटल रॉड में होता है. अभी ये रॉड है, ये मेटल का है. ये मेटल रॉड में फास्ट कंडक्टिविटी है. गीला नैपकिन में, वाटर में फास्ट कंडक्टिविटी है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मेटल एंड वेट नैपकिन. सो इट विल एक्टिव योर बॉडी पार्ट vigorously. Vigorously means not disturbing your any internal human anatomy or physiology. It is only helping. हाँ, हार्ट में ब्लॉकेज रहता है तो वो निकल सकता है इससे विदाउट ऑपरेशन.
बट यू हैव टू टेक वेरी सीरियल सीक्वेंस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट. हार्ट ब्लॉकेज के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ब्लॉकेज निकल सकते हैं. जैसे गाड़ी में कार्बोरेटर में कचरा आता है तो साफ़ करते हैं, वैसे हार्ट एक कार्बोरेटर है बॉडी का, तो उसमें कचरा आता है तो हम साफ़ कर सकते हैं. वैसा ये ब्लॉकेज में 2-3 मंथ्स लगेगा ब्लॉकेज के लिए, ज़्यादा ही होंगे. तो बस कोई भी डिसीज़ हो, बीमारी हो, आप फर्स्ट कंडीशन में आते हैं ना, फर्स्ट वीक में, तो जल्दी ठीक हो सकते हैं. लास्ट स्टेज में आएंगे कैंसर, लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स, तो क्या हो जाएगा? 2-3 घंटा बचते वो जिंदा रहेगा, वो 4-5 घंटे जिंदा रहेगा, लेकिन इफेक्ट तो होगा ना. लेकिन ये फर्स्ट स्टेज में आता तो और 2-3 साल भी लाइफ स्पैन बढ़ सकता है उसका. अभी ये आगे के जो पॉइंट्स है वो देखो. 5th में लंबर रीजन पे दिया, हिप्स पे भी दिया 6 में, हिप्स पॉइंट एंड नाउ बोथ नी जॉइंट पेन. दिस इज वेरी स्पेशल केस. दिस इज नी जॉइंट पेन. योर बॉडी, दिस इज द व्हील ऑफ योर बॉडी, नी जॉइंट. और नी जॉइंट पेन जिसको होता है उसके बाद में क्या हो सकता है, जिसको नी जॉइंट पेन का क्या इंडिकेशन है आगे? नी जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ 30 के बाद, स्टार्ट हुआ 60 के बाद ज़्यादा सीवियर होगा. तो क्या प्रॉब्लम है नी जॉइंट में? आप क्या गेस करते हैं क्या प्रॉब्लम है नी जॉइंट में? पेन क्यों होता है? एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक तो साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, और उसका डिसलोकेशन हो रहा है या फ्रैक्चर होने के चांसेस है. तो ये नी जॉइंट का जो प्रॉब्लम है ये बहुत सीवियर है बॉम्बे में. और दूसरा जो है स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी सीवियर है. स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस में आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? ऑर्थोपेडिक के पास गए आप, क्या ट्रीटमेंट मिलती है आपको मालूम है? बोथ एंकल जॉइंट्स, एंकल टू हिप्स, ऐसे जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना वही देना पड़ता है. किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी बॉडी पे, किसी के भी साथ नहीं कर सकते. हाँ, दिस इज एडवांस फॉर्म एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी एंड मसाज. ये टोटल मिलकर जो इफेक्ट है वो ये इलेक्ट्रोथेरेपी में है. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी यू कैन कवर एक्सेप्ट वन दिस हेड. आप यहाँ टेम्पोरल रीजन पे देंगे, नेक पे देंगे तो भी हेड पे आता है, ब्रेन को मिलता है. जैसे एक्यूपंक्चर में हाथ में, पाँव में फिक्स पॉइंट रहता है, एक हेड पे देते हैं या हाथ में सब देते हैं. एक्यूप्रेशर से भी देते हैं, वो निडल भी लगाते हैं, ये सब पॉइंट्स है. लेकिन इसमें स्पेक्ट्रम कंसिडर करते हैं, उसमें पॉइंट देते हैं, इसमें पूरा एरिया स्पेक्ट्रम कवर होता है. समझो हेडेक एंड माइग्रेन है, तो हेडेक एंड माइग्रेन 12-12 साल किसी को रहता है. तो आपने कभी सुना है 12 साल का माइग्रेन है और वो क्योर हो गया, ऐसा सुना है? हेडेक एंड माइग्रेन. समझो बॉडी को हेडेक है तो क्या तकलीफ हो सकती है, कौन सा बीमारी हो सकती है? हेडेक से हम सर से स्टार्ट करेंगे. इफ़ यू गॉट हेडेक, व्हाट आर द सिचुएशंस इन दैट? क्या क्या बीमारी हो सकती है? हेडेक क्यों होता है? एक तो हाइपर एसिडिटी हो सकती है, दूसरा माइग्रेन हो सकता है, तीसरा ब्रेन ट्यूमर हो सकता है. और क्या है इंडिकेशन मालूम है आपको? हेडेक क्यों होता है? इंसोम्निया होता है. करेक्ट. रात को नींद नहीं आती 2-3 बजे तक, कभी भी 3-4 बजे सोते तो दूसरे दिन 9-10 बजे उठते.